comparative programming, DSA, code forces, lead code, code chef, etc. etc. I really hope and believe that all these buzzwords आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, and especially if you are from tech and into coding. But the thing what I believe is for most of the beginners it feels more like a nightmare because उन्हें कोई बताता नहीं है कि how do you actually get started and किस correct approach से आप CP and DSA आप start करोगे. And by this they end up delaying it and काफ़ी late जाके उन्हें realize होता है कि काश मैं सही समय पे DSA स्टार्ट कर देता या काश मैं सही समय पे. बट हे डोंट वरी, आई रियली होप कि अगर आपने वीडियो ओपन किया है so you are ready to learn, just looking for the right guidance and the right approach to get started. I am Shubhashish, aka ShubDevs, currently rated as a pupil rank at Codeforces with over a 1300 plus rating, and I am here to make your lives a little bit easier and comfortable in coding and tech. And from this video, all your confusion regarding competitive programming, Codeforces, how to solve problems, and all these confusions are going to solve and clear, because from this video we are going to start our competitive programming journey with the platform Codeforces, and that too from scratch, from a beginner level, and eventually will raise the bar. So first we are going to understand that what competitive programming actually is, then ये code forces क्या है, and all these platforms जिनके बारे में आपने सुना होगा, lead code, code forces, code chef, HackerRank, and etc etc, and why we are using the platform code forces for our competitive programming journey, and why you should as well select code forces for your CP journey. And yeah guys, I have prepared a practice set for you जिसमें वो सारे problems रहेंगे code forces के and all the DSA and all the CP problems starting from a beginner level and eventually will raise the bar. And that document, just check out the description, आपको सारे details and सारे information वहाँ पर मिल रहा होगा. Then finally after that we are going to actually start solving some problems, some actual competitive programming problems straight from code forces, step by step, and मैं आपको वो सारे चीज़ें, सारे necessary, सारे important details बता रहा हूँगा कि what you have to remember, what you have to make sure while solving a particular CP problem. Like problem solve करते वक्त आपको क्या thought process रखना है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, what are the best coding practices you should use, and we'll definitely talk about the languages, the language debate as well, and most importantly what are these test cases, and ये CP में कितना important रहता है ये समझना, and we have to write our code in such way कि हम test cases को हम proper हमारा जो code में हम test cases run करवा पाए, and obviously हमारा code हम submit करेंगे to get your result कि whether your code is correct or not. Alright, so let's talk about competitive programming. Competitive programming, or CP for short, is a mind sport where participants/coders need to write programs to solve a well-defined problem. These problems could possibly be related to the topics such as data structures, algorithms, math, logic, constructive programming, dynamic programming, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो बेसिकली सीपी में गोल सिर्फ कोड लिखना नहीं होता है एंड एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता है. ठीक है, द गोल इज टू एनहांस आवर थॉट प्रोसेस. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा दिस इज अ माइंड स्पोर्ट, एंड इससे आपका लॉजिकल थिंकिंग एनहांस होता है एंड यू आर एबल टू थिंक मल्टीपल अप्रोचेस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड उसी लॉजिक एंड थॉट प्रोसेस एंड ऑल इन सबको आप यूज करते हो टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एंड हाउ? प्रोग्रामेटिकली, by writing few lines of code and in whatever language you like. ठीक है, let me be very clear on this point that competitive programming, DSA and all is completely language independent. ठीक है, हालांकि हाँ there are some topics, there are some concepts regarding time and space complexities and all, you might have heard of these topics. ठीक है, but the thing is जो debate होता है ये languages को लेके कि I'm doing CP in Python, I'm doing in CP in C++, I'm better than you, I'm doing CP in Java, I'm better than you. No, please end these debates, please end this topic. Just make yourself comfortable with any language you like, okay? And by comfortable what I mean is कि आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का सिंटैक्स समझ रहे हो, आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको सारे सिंटैक्स एंड सारी चीज़ें समझ में आ रही है, आपको लूप्स रन करना आ जा रहा है, यू नो फंक्शंस कैसे क्रिएट करोगे, फंक्शंस के पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिलेशन, then a little bit of object orientation if you want. It is not really required if you're just starting up, but ठीक है, it is good to have knowledge of object orientation a little bit. But the main point which I'm conveying to you right now is competitive programming is language independent. ठीक है, so feel free to code in whatever language you want, just make yourself comfortable with that particular language and yeah, you're good to go. By the way, I am going to use C++ because that's the language I am comfortable in. Yeah, C++ and Python, these two languages I'm comfortable with. So yeah, I'm going to use these languages to solve my CP problems. And yeah, most importantly, by doing this CP and by solving ये, आप बोलोगे मुझे ये कोड फोर्सेस में आके या फिर मुझे लीड कोड में आके प्रॉब्लम सॉल्व ही क्यों करना है.
क्या ही होगा इससे? सो हियर मी आउट कि दिस विल डायरेक्टली हेल्प यू with your placements, with your interviews, and yeah, in general your placements, and it will definitely boost up your career. It is definitely going to help in your career. ठीक है? Alright, so now let's talk about code forces and what actually it is and why. The most important point, that why we are selecting the platform code forces for our competitive programming journey. Because as you know, we have multiple platforms. ठीक है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा सारे platforms का नाम, that is Lead Code, Code Chef, Hacker Rank, and etc etc. ठीक है, but why I prefer and insist to use code forces to start your competitive programming journey over all the other platforms. So Codeforces एक obviously online competitive programming platform है जहाँ पर आपको multiple and insane amount of problems, real world problems मिलते हैं to solve and enhance your skills in competitive programming. यहाँ पे each problem have their Codeforces काफ़ी famous है अपने contest के लिए. So यहाँ पर regular and week basis पे, regular basis पे काफ़ी contest होते हैं and these contests are kind of also categorized by obviously their difficulty. So ये कॉन्टेस्ट के जो पार्ट्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, कुछ 3-4 सेगमेंट्स होते हैं, div 4, div 3, div 2, div 1. So as you can see कि ये लेवल्स होते हैं कॉन्टेस्ट के. div 4 इज लाइक फॉर वेरी बिगनर्स, मतलब एकदम ही ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको आते हैं. देन div 3 में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अप होगा, div 2 में और अप होगा डिफिकल्टी लेवल, div 1 में और अप होगा डिफिकल्टी लेवल. सो बाय दिस द कॉन्टेस्ट आर कैटेगराइज्ड. एंड ऑल्सो कोड फोर्सेस इज वेरी फेमस फॉर देयर रेटिंग सिस्टम. आपने कहीं ना कहीं सुना होगा लोगों को कहते हुए कि आई एम लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर, आई एम मास्टर, आई एम स्पेशलिस्ट, I am pupil, I am candidate master and all. Like as you can see currently, by the time I'm recording this video, I am currently rated as pupil at Codeforces with a rating over 1300 as you can see. तो होता क्या है कि हर कॉन्टेस्ट आप अटेंड करो, हर कॉन्टेस्ट के बाद आपकी अपनी जो रेटिंग है वो अपडेट होती है. सो बेसिकली जो रेटिंग है काइंड ऑफ आपका जो करंट सीपी लेवल है वो आपका इंडिकेट करता है. एंड या प्लीज लेट मी इंक्लूड दिस थिंग कि इस चीज़ को भी वापस रैट रेस की तरह ट्रीट मत करना. ये किसी का रेटिंग अप है या डाउन है, या ये रेटिंग आपका कोई सर्टिफिकेट आपका ये नहीं बताता है. दिस इज जस्ट अ फीडबैक कि आपका करंट जो कोड फोर्सेस एंड करंट सीपी में जो आपका रिकॉर्ड चल रहा है, बस वो आपका भी करंट रिकॉर्ड क्या चल रहा है वही बताता है. सो जस्ट डोंट ट्रीट दिस एज सम अनदर रैट रेस और समथिंग. ठीक है, जस्ट ट्रीट दिस एज अ नॉर्मल लेवल एज यू कैन सी. ठीक है, जैसे गेम्स में लेवल्स होते हैं, गेम्स में रैंकिंग्स होती है, मेरा ये सिल्वर रैंक है, गोल्ड रैंक है. Just treat that like a game only. And you know what, there is a very big term in competitive programming and जिसमें ये code forces का भी काफ़ी contribution है. That term is called ICPC, International Collegiate Programming Contest. ये एक programming contest होता है in world level. Like this is the world's biggest competitive programming college level contest, जिसमें कि आपकी एक टीम होती है with 3 members, you have 5 hours and some questions. अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, if you win the ICPC contest, so believe me, that's a very 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 big thing for you. Because सिर्फ ICPC वर्ल्ड फाइनल्स में ही सिलेक्ट हो जाना बहुत बड़ी बात रहती है. एंड इवन इफ यू हैव वन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट, सो उससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है. सो अगर आप ICPC रीजनल्स तक, ICPC वर्ल्ड फाइनल्स तक पहुंच जाते हो एंड आपका ऑब्वियसली आपका कोड फोर्सेस में भी काफ़ी अच्छा प्रोफाइल बना है, आपका कोड फोर्सेस में काफ़ी अच्छा रेटिंग है, देन रियली इट इज़ अ बिग सिग्नल फॉर यू. एंड टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी कंपनीज सच एज गूगल ये डायरेक्टली आपका कोड फोर्सेस में रेटिंग देख के, आपका परफॉर्मेंस देख के डायरेक्टली आपको अप्रोच करती है. सो या आई कैन स्पीक फॉर लाइक इवन मोर आवर्स कि आपको क्यों कोड फोर्सेस यूज़ करना है, और किसी और के पास जाओगे तो वो आपको बोलेगा कि यार क्यों यूज़ करना चाहिए लीड कोड या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट द थिंग इज यू रियली नीड टू गेट स्टार्टेड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सीपी कि आप स्टार्ट तो करिए. ठीक है, प्लेटफॉर्म अगेन कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक भी वो रैट रेस मत करना कि आई एम डूइंग कोड फोर्सेस, आई एम डूइंग CF, यू आर डूइंग लीड कोड, आई एम बेटर देन यू और यू आर बेटर देन मी, ऐसा कुछ रैट रेस मत करना. ठीक है, the main goal is to enhance your skills. ठीक है, the main thing is to make your career. ठीक है, alright, so yeah, that's it. I believe कि इतना सारा explanation and इतना सारा theoretical aspects is enough to you get started with competitive programming and especially with code forces. Now let's get right into it with the really important aspect which I believe, and if you know me, so you know कि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा focus करता हूँ. That is practical understanding, like doing things practically. ठीक है, so yeah, without any further ado, let's get started. Let's actually solve some of the code forces competitive programming problems. Okay, so before that, जैसे कि मैंने कहा कि I have prepared a proper code forces practice set for you. So yeah, by the way, obviously all the important links and all the useful links, do check it out in the description section. You'll get everything there. But yeah, do remember this link. Okay, shubdevs.cc.cc. okay, इस पर्टिकुलर रिसोर्स सेंटर में आके यहाँ पर आके आपको सारे वो मेरे इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड यूजफुल लिंक्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है,
एंड जस्ट आपको सबसे टॉप में यहाँ पर दिख रहा होगा कोड फोर्सेस प्रैक्टिस सेट, सो यू कैन क्लिक ऑन इट एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस गिटहब रिपोजिटरी ऑफ माइन. एंड ऑब्वियसली इनिशियली आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, बट या मे बी बाय द टाइम you are watching this video, this will definitely get updated, right? And yeah, make sure you start this repository and make sure to save this, okay? And also you can check it out to my GitHub, okay? Just scroll down a bit and आपको pinned section में code forces practice set आपको ये मिल रहा होगा, ठीक है? अभी तो initially few problems displayed है, लेकिन as time goes by प्रॉपर ये कैटेगराइज होगा और प्रॉपर हर लेवल के आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर मिल रहे होंगे. इस प्रॉब्लम सेट में आपको प्रॉपर प्रॉब्लम्स पूरे एक लेवल में आपको कैटेगराइज मिलेंगे विथ प्रॉपर कोडेड सॉल्यूशंस एज वेल एंड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस एज वेल, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा कि आई विल बी कोडिंग इन C++, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर एज टाइम गोज बाय I'll keep on updating the repository and adding the languages and adding the solutions in multiple languages as well, ठीक है? And obviously as it is written here that feel free to contribute to this repository. Just open a pull request of maybe if you found some bug in a code, if you want to add or update something, if you want to जैसे कि say for example आप you are using Rust or Java, आप किसी भी language में code कर रहे हो, if you want कि वो language में solutions यहाँ पर रहना चाहिए, so just feel free to open a pull request. I'll be more than happy to merge it, okay? So yeah, before moving further, I would urge you, if you don't have your Codeforces account created yet, so just do visit codeforces.com and just register and create a new Codeforces account. अभी हम स्टार्ट करेंगे ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम का एक ऐसा काइंड ऑफ टाइटल रहेगा, हेडिंग रहेगा, ठीक है? एंड यू कैन सी हियर टू जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर कि आपका कितना टाइम लिमिट होना चाहिए, कितना मेमोरी होना चाहिए लिमिट, वो यहाँ पर मेंशन रहता है. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वी डोंट नीड टू वरी अबाउट रिगार्डिंग दीज टू टर्म्स, द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल एट द इनिशियल स्टेजेस. इवेंचुअली एज वी रेज द बार विल डेफिनेटली लुक टूवर्ड्स दीज टॉपिक्स एज वेल, ठीक है? सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस कि आपको सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें उससे पहले मैं कुछ बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू जस्ट कीप इन माइंड एंड जस्ट मेक श्योर, ठीक है, while solving any competitive programming problem, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं कुछ पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगा. कोई भी आप प्रॉब्लम देखो, लाइक एनी प्रॉब्लम यू लाइक सी, या फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म में देखें या फिर मोर स्पेसिफिकली आप कोड फोर्सेस में कोई भी प्रॉब्लम देखें, so it will have these few things. First the problem statement we can say, ठीक है? The problem statement and slash you can say the description, ठीक है? Yeah, problem statement काफ़ी easily आप समझ सकते हो, ठीक है? So first it will have a problem statement, ठीक है? As you can see here कि यहाँ से यहाँ मतलब actually होता क्या है ना, जैसे कि मैंने कहा कि real world CP प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब काफ़ी अभी तो काफ़ी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ईजी भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन एज द टाइम गोज बाय आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि उसमें काफ़ी केस बेस्ड टाइप, सिचुएशनल बेस्ड टाइप यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे होंगे. लाइक आपको वो पूरा डिस्क्रिप्शन, वो पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको रीड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हो क्या रहा है पूरा, क्योंकि उस पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, उस पूरे डिस्क्रिप्शन में वो हर एक इंपॉर्टेंट छोटे से छोटे जगह वो डिटेल छुपा होता है जो आपको ज़रूरी रहता है टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. So first part I'll say it as so first part I'll say कि problem statement होता है very important. इतना सा part पूरा जो लिखा रहता है, we have to read this and understand. The second part I would say it is the overall input and output, ठीक है? पूरा जो ये ओवरऑल इनपुट एंड आउटपुट जो फ्लो है, जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है, दिस इज लाइक होता है ना, काफ़ी लोग में भी बोल सकते हैं इसे काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं. लोग कहते हैं कि अरे इनपुट एंड आउटपुट ही तो है, लाइक ओके सिर्फ और सिर्फ इनपुट मतलब क्या, एक्सपेक्टेड आपका इनपुट क्या रहना चाहिए और उस इनपुट पे आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए, बस इतना ही तो लिखा रहता है. बट बिलीव मी काफ़ी बार हुआ है भाई कि सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट के कुछ पैटर्न को ही ऑब्जर्व करके आपको लाइक हो सकता है काफ़ी बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के उतना समझ नहीं आ रहा होता है कब पहले तो, मतलब हमें क्लिक नहीं हो रहा होता है चीज़ें कि, मतलब हमें क्लिक नहीं हो रही होती चीज़ें कि यार हम क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करें यहाँ पर. सो उस केस में रियली बताऊँ मैं, जस्ट बिलीव मी और नॉट, बट रियली यू हैव टू बिलीव मी दैट इनपुट एंड आउटपुट का जो ओवरऑल फ्लो है एंड पैटर्न एक हम ऑब्जर्व करके हमें क्लिक हो जाती है कि अच्छा दिस थिंग इज हैपनिंग है. सो या आई वुड डेफिनेटली से कि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट एंड आउटपुट सेकंड पार्ट. एंड आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये कोई ऐसा कोई रीड या वो करने का पार्ट नहीं है. दिस इज द पार्ट वेयर यू कोड, ठीक है?
इन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या फिर आप किसी इन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या फिर ऑब्वियसली आप ये सीपी में हो, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लाइक आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपके अपने कोड एडिटर, आपके अपने कोड एडिटर में, आपको कोड लिखने में आपको ध्यान देना है। क्योंकि काफ़ी ऐसा होता है चीज़ें कि ओके हमें पढ़ के तो समझ में आ गई, वी हैव ऑब्वियसली ओके वी आर डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग कैसे क्या करना है, लेकिन कोड ही नहीं करना स्टार्ट करते। दे जस्ट कीप ऑन एंड जस्ट दे जस्ट stuck on reading the problem and just wandering around, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। just read it and then immediately start writing the code, okay। so yeah, मैंने तो just ये चीज़ें कुछ parts explain कर दिए। now let's really quickly deep dive into the properly understanding our problem, this problem statement। जैसे मैंने कहा फर्स्ट आपको, अब देखो मैं आपको आई वुड रियली अर्ज यू एंड इंसिस्ट यू कि यू ऑल्सो जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ बिट। आप इन वन गो आप इस पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करो। इन वन गो मतलब होता क्या है, रीड करते करते पूरा आप अपने माइंड में विजुअलाइज एंड इमेजिन करते रहो कि सारे कंडीशन सब चीज़ें पढ़ के आपको क्या समझ में आई। देन जस्ट ओके पॉज इट एंड देन अंडरस्टैंड एंड देन अगेन कंटिन्यू, और देखना कि आपका जो थॉट प्रोसेस था और आपने जो चीज़ समझी, मैंने जो चीज़ समझी, वो सब सिमिलर हो रहा है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द प्रॉब्लम। सो यू आर गिवन 4 sticks, okay, of length A, B, C, D, yeah, respectively. You cannot break them or bend them, ठीक है। So determine whether it is possible to form a square, ठीक है, using the given sticks, okay। जस्ट यहाँ पर स्क्वायर का डेफिनेशन काइंड ऑफ लिख दिया, ओके। स्क्वायर इज डिफाइंड एज अ पॉलीगॉन कंसिस्टिंग ऑफ 4 vertices of which all sides have equal length and all inner angles are equal, no two edges of polygon may intersect each other, ओके। बस इतना ही पढ़ना है, अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम हो सकता है ऐसे काफ़ी देखो चीज़ें होती है, मैंने काफ़ी ऐसा ऑब्जर्व किया है खुद को भी लेके कि कभी कभी तो कोई भी प्रॉब्लम रहता है हम पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन उस समय हम समझने में ध्यान नहीं दे रहे होते, हम रीड करने में ध्यान दे रहे होते हैं, तो कभी कभी चीज़ें ऊपर से चले जाती है। सो डोंट वरी, वापस एक बार रीड करो, 2-3 बार रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी, सो ये तो हमको पढ़ के तुरंत समझ में आ गया होगा। सो जहाँ तक मुझे अब तक समझ में आया रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि वी हैव दीज 4 sticks, ठीक है, वी हैव दीज 4 sticks, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इन चारों स्टिक्स का जो लेंथ है हमें गिवन है ए, मतलब ए लेंथ है, ऑब्वियसली वो पूरे मतलब जो चारों जो स्टिक्स है उसके लेंथ है। अब देखो ये है ना कि मैंने कहा ना कि थोड़ा रियल जो सीपी के आप प्रॉब्लम्स देखोगे ना, ऐसे ही देखोगे कि वो एकदम ऐसे जैसे आपको आपने अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, कभी ना कभी अगर कोई भी कोडिंग के प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे ना, आपको ऐसे कुछ दिख रहे होंगे कि अरे सॉल्व लाइक राइट अ कोड टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल, या फिर राइट अ कोड टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल। तो ऐसे बेसिक तो चलो वो एक बेसिक बिगिनर, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली वो क्वेश्चंस रहते ही हैं, बट आप प्रॉपर आप सीपी में एंटर अगर कर लोगे ना, तो आपको ऐसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आपको ऐसे दिख रहे होंगे, आपको कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से एक रियल सिचुएशन पे बेसिस आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ इंस्टेड ऑफ स्टिक्स, यहाँ देखना इंस्टेड ऑफ स्टिक्स यहाँ पर मैं लाइन अगर बोल देता कि सिंपल यू आर गिवन 4 lines ऑफ लेंथ ए बी सी डी, तो वो काफी पढ़ के आपको लगता है तो काफी ईजी है, लाइन्स नॉर्मल सिंपल चल रहा है एकदम। बट वही है ना बात कि ठीक है, आपको इसलिए आपका लॉजिक, आपको जो थिंकिंग स्किल है वो आपको यहाँ काफी एनहांस होता है कि आप उस चीज़ को प्रॉपरली विजुअलाइज कर सको, इमेजिन कर सको कि एक्चुअली में वो चीज़ ऐसे ऐसे चल रही है, एंड उस बेसिस पे उस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन लिख सको, सॉल्यूशन कोड कर सको। हमें ये डिटरमाइन करना है सिंपल कि इन चारों स्टिक्स को यूज करके क्या हम एक स्क्वायर फॉर्म कर सकते हैं। आई होप सो यू कैन सी, आई होप सो दिस सीम्स टू बी अ स्क्वायर फॉर यू। सो अब आप देखो कि आप अब बोलोगे यार लिटरली ऐसे, मतलब ये तो कहीं ना कहीं सुन के इतना लग रहा है यार तो काफ़ी इजी है, मतलब इतना ही था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैं बोलूँगा हाँ इतना ही था, बट यार ऑब्वियसली मैंने कहा ना कि देखो आप कोई भी प्रॉब्लम आते हो ना, आप प्रॉब्लम के नीचे आना, जस्ट स्क्रॉल अ बिट, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम टैग्स सेक्शन में आपको, चलो एक तो इसके जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे रहते हैं सब टैग्स हैं। बेसिकली ये सब जो है ये जो प्रॉब्लम है किस टॉपिक से रिलेटेड है वो यहाँ पर बताता है। जैसे ऑब्वियसली ये मैथ है थोड़ा रिलेटेड है, ये सॉर्टिंग के भी रिलेटेड है, तो या नो इश्यूज। और बाकी जो नंबर लिखा रहता है, दिस इज एज आई सेड इन द इंट्रो ऑफ दिस वीडियो, इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, दैट हर प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड उसका एक रेटिंग होता है। सो एज आई टोल्ड यू कि भाई जो इनिशियल जो बेसिक जो बिगिनिंग है जो रेटिंग का जो लेवल का, वो 800 से स्टार्ट है, या कोड फोर्सेस में कोई 0 से स्टार्ट नहीं होता, 800 सबसे लोएस्ट रेटिंग है, सबसे ईजीएस्ट मतलब रेटिंग वाले क्वेश्चन है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं। सो या दिस इज डेफिनेटली, क्योंकि आप देख सकते हो हमने जब ये स्टार्ट किया, सो
ऑब्वियसली हम एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, देन इवेंचुअली विल रेज द बार। आपने अब तक पूरा अगर समझ लिया, पूरा आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो यही है कि यहाँ पर पूछ भी दिया कि हमें ये डिटरमाइन करना है कि क्या पॉसिबल है इन 4 स्टिक्स का यूज करके एक स्क्वायर बनाना। तो अब देखो इस पॉइंट पे, हमेशा इस पॉइंट में ना, मतलब आपको हर एक, जैसे कि मैंने जो 2 पार्ट्स बताए ना, एक पार्ट होता है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड दूसरा पार्ट होता है आपका वो इनपुट आउटपुट ऑब्जर्व करना। तो हमेशा हर पार्ट, मतलब पहला जब आप पार्ट कर लो, जस्ट टेक अ 1 मिनट पॉज एंड आप जस्ट विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, थिंक करो, एक्चुअली आप लॉजिकल थिंकिंग करो, जस्ट टेक अ 1 मिनट पॉज कि ठीक है सब चीज़ें समझ में आ गया, कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। आप ये जो लॉजिक जो चीज़ होती है ना, हमेशा हर कोई आप देखोगे लॉजिक लॉजिक बोलता है, लॉजिक, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक। व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक होता है वो कोर, या फिर अगर इस प्रॉपर इस सीपी और प्रॉपर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से देखा जाए तो प्रॉपर वो अप्रोच या प्रॉपर वो मैथमेटिकल अप्रोच। देखो अप्रोच ऑब्वियसली आप कोड करते हो, सीपी में हो, मैथमेटिक्स, तो वो अब एकदम ही आपको कैलकुलस और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लेवल का तो नहीं बोल रहे, एंड ऑब्वियसली इनिशियली तो बिल्कुल नहीं, बट इन जनरल जो मैथमेटिकल, अब भाई नॉर्मल जो मैथमेटिकल एक अंडरस्टैंडिंग आपका अगर है, सो यू आर गुड टू गो यार, ठीक है। लाइक अब यहाँ पर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे कि आपको इतना पता है, यू नो, देखो पॉलीगॉन, आपको कोई पॉलीगॉन का डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, आपको वर्टिसेस, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ आपको स्ट्रेस नहीं देना है, तब जब बस वर्ड्स सुन के आपको वो नहीं हो जाना है कि अरे यार ये सब क्या मैथ्स क्यों आ गया इसमें। सी आपको बस जनरली आप, एंड ऑब्वियसली यार, if you are from and I hope and I really hope and believe if you're watching this video, like most of you guys might be from a mathematics background, and yeah, if you're into coding भाई, आप बिल्कुल मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग आपका होगा उतना कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट एक स्क्वायर है, मतलब एक स्क्वायर होना, मतलब उसका जो मैं प्रॉपर्टी बताऊं, अगर आपको स्क्वायर का प्रॉपर्टी याद होगा, सो ऑल द स्क्वायर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये आपको याद होगा। अगर ये एक्स लेंथ है तो हाँ सारे जो उसके साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ के होंगे। यू नो दिस रूल, यू नो दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। देखो बस मतलब यही हमको लॉजिक जो था हमारा, यही मैथमेटिकल लॉजिक जो था हमारा, यही हमें इंप्लीमेंट करना है, एंड दैट्स इट। क्योंकि आप देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, मतलब अब तक हमने जितना रीड किया इसमें, क्या कहीं एंगल का, ये जैसे कि यहाँ जो स्क्वायर का डेफिनेशन लिखा था, जैसे इसमें पूरा 4 वर्टिसेस बोल रहा है, एंगल्स बोल रहा है, क्या एंगल्स वर्टिसेस कहीं दिया है? कुछ नहीं दिया है। लेकिन अगर हाँ यहाँ पर अगर साइड्स दिया है, हमें तो ऑब्वियसली साइड्स दिया है ना, एंड हाँ हमें साइड्स का ही जरूरत है, क्योंकि वी कैन चेक। यहाँ पर देखो ये जो मैं बोला ना कि 1 मिनट का पॉज लो एंड थिंक करो, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में सोचनी है पूरा, मैं बस अभी बता रहा हूँ आपको। तो आपको यही पॉज में सोचना है आपको कि अच्छा मेरे पास तो साइड्स है, हाँ ए बी सी डी, आई कैन लिटरली चेक कि यार अगर ये सारे साइड्स का लेंथ इक्वल हो जाए, देन या वी आर गुड टू गो। हम उन चारों स्टिक्स का यूज करके एक स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं, एंड या दैट इज इट। इतना ही आपको ऑब्वियसली करना है, मतलब इतना से ही आपको समझ में आ गया, आपको एक लॉजिक बिल्ड हो गया। अब आपको कुछ नहीं भाई, डायरेक्टली एक तो है कि कोड से आपको डायरेक्टली स्टार्ट कर देना है, बट यार ये जस्ट होल्ड ऑन, ये तो है बिल्कुल आपको कोड करना ही चाहिए। बट यार जैसे कि मैंने कहा कि आपको फिर भी दोनों पार्ट आप एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, पूरा स्टार्टिंग टू एंड आपका प्रॉब्लम रीड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले तो अभी मैं ये चीज़ थोड़ा ऑब्वियसली डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। होता क्या ना कि ये इनपुट का आपको यहाँ पर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सीपी में, और यहाँ स्पेशली ऐसे सीपी में आपको इस टाइप का एक कोड लिखना पड़ेगा। सो सी द थिंग इज इनपुट एंड आउटपुट। आप इतना तो समझ सकते हो इनपुट आउटपुट क्या होता है, कि आप जो अपना प्रोग्राम ऐसे लिखोगे कि वो कुछ ऐसा इनपुट, आपको ऐसा प्रोग्राम अपना लिखना है जिसमें आप फर्स्ट ऐसे कुछ इनपुट्स ले रहे होंगे, एंड उस बेसिस पे जो भी वो इनपुट से प्रोसेस होगा, जो भी आप कोड लिखोगे, जो भी लॉजिक लिखोगे, उसके बाद आपका जो आंसर वो एक्सपेक्टेड ऐसा आना चाहिए। जैसे कि मतलब इसमें जो यहाँ पर जो एग्जांपल में यहाँ ऐसे जो लिखा रहता है कि आप यहाँ पर देखो हवर करोगे तो ऐसे हाईलाइट होके भी आएगा कि ये पहला था, एंड एक्चुअली ये जो हो रहा है ना, इन्हें टेस्ट केसेस बोलते हैं। जस्ट होल्ड ऑन अ बिट, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी रिगार्डिंग टेस्ट केसेस। जो टेस्ट केसेस थिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनिशियली समझना, फिर आप एक बार में आप समझ जाओगे ना, फिर धीरे धीरे आप देखना उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। वेरी वेरी ईजी थिंग है यार। तो आप देख सकते हो ये टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, कि टेस्ट केस मतलब क्या होता है। ये फर्स्ट जैसे आप देख सकते हैं 1 1 लिख के आ रहा है, 1 एंड यहाँ 1, यहाँ 2 2, मीन सिंपल सी बात है। टेस्ट केस मतलब क्या होता है, एक सेट ऑफ इनपुट, ये जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इनपुट था, ठीक है, मतलब ये पहला जो आपने चेक किया इनपुट देके, ये 1 2 3 4 ऐसे कुछ दिया। अब इस पहले टेस्ट केस पे जो आउटपुट, ऑब्वियसली ये पूरा टेस्ट केस है, पहला टेस्ट केस, ये जो पहला टेस्ट केस के जो ये इनपुट पे जो आउटपुट आया वो नो आया, तो ये है इनपुट आउटपुट। बाय द वे आप देख भी सकते हो कि नो क्यों आ रहा है, अगर आप सोचो तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको इनपुट आउटपुट देके ऐसे आपको अंडरस्टैंड करना है कि इनपुट नो, आउटपुट नो इसलिए आ रहा है क्योंकि एज यू कैन सी 1 2 3 4 क्या होगा, ऑब्वियसली द लेंथ्स ऑफ द स्टिक्स,
अब आप देख सकते हो चारों लेंथ अनइक्वल है, ठीक है। फॉर अ स्क्वायर टू बी स्क्वायर ऑल द साइड्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट था तो नो आया ऑब्वियसली, लेकिन सेकंड आप देखोगे 1 1 1 1 है, सारे साइड्स इक्वल है, दैट्स व्हाई यस आया। तो वही था कि यही है कि आपको इसलिए बोल रहा था कि मतलब एक्चुअली आपको कोड अपना इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि ये यस नो में आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो एग्जाम्पल में लिखा रहता है ना, ये काफ़ी देखना इसलिए ज़रूरी रहता है कि वो यहाँ पर बताता है कि आप कोड अपना ऐसे लिखोगे जिससे आपका ऐसे आउटपुट आना चाहिए। सो पहले तो हम इनपुट वाला सेगमेंट पढ़ते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर टी, ठीक है, द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ओके ओके। तो अच्छा आइए और सही बताऊं तो हम पढ़ते पढ़ते मैं आपको समझाने भी वाला हूँ अभी टेस्ट केस, हम डायरेक्टली कोड भी करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस टेस्ट केस ऑल अबाउट। लाइक ऑब्वियसली विल राइट आवर कोड, ठीक है। एंड कोड लिखने के बाद हम क्या करेंगे ना यहाँ आके, क्योंकि ऑब्वियसली अब देखो हमें कौन बताएगा कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जब भी मैंने कोड किया था, मैंने जब सबमिट किया था, फिर यहाँ पर एक्सेप्टेड आता है, ठीक है। सो वही है कि हम आके एक्चुअली क्या करते हैं, हम यहाँ आके हमारा कोड सबमिट करते हैं, ठीक है। We'll obviously select a language, we will select the problem, we'll select obviously the compiler slash language, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज में मैं जिस भी लैंग्वेज में करूँगा उसका लैंग्वेज या फिर कंपाइलर सेलेक्ट करके या फिर इंटरप्रेटर सेलेक्ट करके आई पेस्ट द कोड हियर एंड देन फिर सबमिट। फिर वो चेक करता है मेरा कोड, देन अगर मेरा कोड सही हुआ देन वो एक्सेप्ट बता देता है। तो या दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। आई होप सो दिस इज विजिबल टू यू एंड या लेट्स स्टार्ट विद द बॉयलरप्लेट कोड एंड ऑल। सो आई होप सो। या ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा मैं C++ यूज़ करूँगा टू राइट द प्रोग्राम। आप कोई भी लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो, ओके। सो या इंक्लूड आई एम इंक्लूडिंग IOStream। सो या बाय द वे काफ़ी लोग यहाँ बोलेंगे ना कि हाँ काफ़ी लोग आप बिगनिंग हो गए तो आप IOStream यूज़ कर रहे होगे, फील फ्री टू यूज़ इट। बट होता क्या है कि या नाउ यू आर एट एज यू नो यू आर इन टू CP एंड काफ़ी यहाँ पर मैं आपको एक न्यू लाइब्रेरी, एक न्यू इंक्लूड से आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, दैट इज़ bits/stdc++.h, ओके। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर। नाउ या आप बोलोगे कि ये क्यों है, सो या जस्ट होल्ड ऑन अ बिट, मैं कहीं ना कहीं से थोड़ा फ्यूचर में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इंस्टेड ऑफ IOStream वाई अ रियल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में या फिर इन जनरल आप कोई भी एक हाई लेवल एडवांस्ड C++ का कोड देखोगे उसमें bits/stdc++.h क्यों इंक्लूड किया जाता है इंस्टेड ऑफ IOStream एंड ऑल। बट यार डोंट यू वरी, इफ यू वांट टू इंक्लूड IOStream फील फ्री टू डू इट। जस्ट इसका एक बस ये मैं कर रहा हूँ बिट्स क्योंकि इसका एक एडवांटेज होता है, आई एक्सप्लेन यू लेटर। सो या जस्ट यूजिंग द स्टैंडर्ड नेम स्पेस देन क्रिएटिंग द मेन फंक्शन। अब देखो यहाँ पर अब आपको पता है कि अब आपको होता क्या है ना कि आपको हमेशा आप जब प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करोगे ना तो एक बार ठीक है ये तो बॉयलर प्लेट कोड हो गया तो सिंपल है, बट वो ये कि आपको मतलब स्टक हो जाओ कि यार ठीक है मैं समझ तो गया लेकिन मुझे समझ में आ गया तो मतलब कि मुझे सारा लेंथ लेना है, मुझे चेक करना है सब लेंथ इक्वल हुआ और यस नो प्रिंट करवाना है, लेकिन एक प्रॉपर एक वे रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ इनपुट एंड आउटपुट बताता है कि इनपुट आपको इनपुट से स्टार्ट करना है, रीड करना, एंड इनपुट ही देख के आपको उस हिसाब से आपको अपना कोड लिखना रहता है। कि आप देख सकते हो इट्स सेइंग कि इनपुट में जो फर्स्ट लाइन मतलब ये जो होता है ना द फर्स्ट लाइन ऐसे जो कहता है कि ये कह रहा होता है कि जैसे ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो द वेरी फर्स्ट लाइन में जो इनपुट वो ले रहा हो वो ये टी ले रहा हो, टी फील फ्री टू नेम इट एनीथिंग, बट यहाँ ये टी बोलता है, टी होता है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। अब मैं आपको समझाता हूँ पहले ये क्या है टेस्ट केसेस। अब देखो टेस्ट केसेस का कॉन्सेप्ट क्या है ना, देखो होता क्या ना, हम क्या करेंगे ये इससे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोड रहेगा, ठीक है। हम ये ऑब्वियसली कोड लिखेंगे हमारा कोड। अब होता क्या है कि अब हम ये इस पूरे कोड को जो ये समझो ये जो CP के या फिर जो भी मतलब CF अभी कोड फोर्सेस में है तो कोड फोर्सेस के हम कहीं ना कहीं सर्वर में इसे अपलोड करते हैं, इस कोड को हम अपलोड करते हैं एंड विच वी कॉल सबमिट, हम इसे सबमिट करते हैं। अब वो ये कि लाइक हैव यू एवर वंडर्ड कि हमारा कोड जैसे होता है ना, अब देखो ऐसा लाइक ज़रूरी तो नहीं कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ एग्जैक्टली सेम विथ सेम स्पेसेस एंड सेम लाइन सेम वेरिएबल नेम आपका भी वैसा हो, ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सो मतलब कैसे डिटरमाइन करता है कोई भी वो जो कोड फोर्सेस के सर्वर में जाता है आपका कोड जो चेकिंग हो रहा होता है, जो चेकिंग करता है, तो वो कैसे मतलब ये कोड चेक करके बताता है कि या डिटरमाइन कैसे करता है कि हमारा कोड सही है या गलत है। सो दैट इज डिटरमाइंड बाय द इनपुट एंड आउटपुट एंड मोर प्रिसाइसली इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट, या फिर सिंपल आप बोलो एक्सपेक्टेड इनपुट एंड आउटपुट। कि होता क्या है कि जैसे कि मैंने कहा जैसे ही आप सबमिट करते हो आपका कोड ऑब्वियसली जो कोड फोर्सेस के जो भी सर्वर में सबमिट करते हो तो काफ़ी
चेकिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। अब वही है कि इन सब चीज़ों में हमको डीप में नहीं जाना है, ठीक है, कि चेकिंग एल्गोरिदम क्या हो गया, ये लिटरली इसमें डीप में नहीं जाना है हमें, बस ये हमें समझना है कि जो चेकिंग एल्गोरिदम जो भी यहाँ पर लगा के हम रखे, क्योंकि ऑब्वियसली बिहाइंड इट देयर इज नो ह्यूमन कि वो हर इंडिविजुअल का कोड चेक कर रहा है, ऑब्वियसली इतने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल का वो चेक नहीं कर सकता बैठ के। उसके पीछे एक जो एल्गोरिदम लगा है जो चेक करता है आपका कोड, वो क्या कर रहा होता है ना, यहाँ पर हम कोड में वापस आते हैं, वो आपके कोड में मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल इनपुट्स देके, या जस्ट ऑब्वियसली इमेजिन दीज एरोज एज इनपुट्स, वो मल्टीपल इनपुट्स देके चेक कर रहा होता है कि इस इनपुट का, ठीक है, इस पर्टिकुलर इनपुट का आप मतलब वही बात है, इस पर्टिकुलर इनपुट का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट मतलब आ रहा है कि नहीं, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट मतलब वेल डिफाइंड है उस एल्गोरिदम के पास कि हाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें 12 इनपुट पे, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ओके, अगर एक ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसमें एल्गोरिदम में ये स्टेटेड है, ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है कि 12 इनपुट पर आंसर 6 ही आना चाहिए, ये मतलब वेल डिफाइंड है, वेल प्रॉपरली प्रूवन एंड टेस्टेड है, ठीक है, कि 12 पर 6 ही आना चाहिए। अगर या दिस इज ऑब्वियसली आपका चेकिंग एल्गोरिदम में प्रॉपर लिखा हुआ है, आपने अपना कोड कुछ इस प्रकार लिखा है कि आपके 12 इनपुट देने से आपका 4 आ रहा है, या दिस माइट बी सम, भाई ऐसे पॉसिबिलिटीज होते हैं, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर होता है ना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये बेसिकली आपका बता रहा होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो गलत है। तो इस पर, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा ना कि इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आपका आउटपुट आना चाहिए, कि इस पर्टिकुलर इनपुट पे, उन पर्टिकुलर इनपुट्स पे आपका सही एक्सपेक्टेड जो आउटपुट डिफाइंड है वही आना चाहिए। अगर आपका वो आ रहा है देन योर कोड इज 100% करेक्ट। सो नाउ दिस इज द थिंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अब आपने तो देखा कि चलो ठीक है, हमने तो चलो समझ लिया कि ये काफ़ी इनपुट्स होते हैं, ऐसे हमारा जो भी हम जब भी सबमिट करते हैं तो जो भी चेकिंग एल्गोरिदम्स रहते हैं वो हमारे कोड में मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल इनपुट्स इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अब बात वही रहता है कि हमें मतलब हमारा कोड ही इस प्रकार कुछ मतलब बनाना रहता है कि वो, अब जैसे कि आप देखो, आप ऑब्वियसली अगर आप नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल यही आप नॉर्मल आप कोड कर रहे हो, मैं आपको नॉर्मल यहाँ पर एक C++ का कोड लिखूँ, सी आउट और सिंपल मैं यहाँ पर लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जस्ट सिंपल मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, या यू नो दिस, ठीक है, एंडल मैंने करके सिंपल हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है, यू नो दिस मच कोड, सिंपल C++ का कोड है, या सो देखो आपने देखा भी क्या हुआ, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने ऑब्वियसली से कमांड दिया और ये रन हो गया प्रोग्राम। तो देखा आपने ये जो कोड कुछ इस प्रकार लिखा था कि एक बार आपने कोड लिखा, ठीक है, जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखने लिखे वो एक बार रन हो गया एंड देन एग्जिट हो गया, आप देख सकते हो एग्जिट हो गया यहाँ पर। बट वही बात है ना कि हम ऐसा एक्चुअली यहाँ नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब ऐसा हम एग्जैक्टली हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर ये जो टेस्ट केसेस का कॉन्सेप्ट रहता है यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर अगर आप नीचे इनपुट्स वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे, यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप देखोगे यहाँ पर वियर्ड टाइप का कुछ चीज़ लिखा है, मे बी आपको इनिशियली समझ ना आ रहा हो लेकिन समझ में आएगा सून। यहाँ पर पहले तो 7 लिखा है, ठीक है, फिर अजीब सा चालू हो गया और यहाँ का 7 में तो हाईलाइट भी नहीं हो रहा नीचे कहीं, ऐसा क्यों? द थिंग इज ये 7 बता रहा है द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। नाउ व्हाट इज दिस, बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि आप एक्चुअली क्या करते हो, सबमिट करते हो, ये आपका कोड है, डेफिनेटली दिस इज योर कोड, एंड आप इस अपने कोड को सबमिट करते हो टू द कोड फोर्सेस सर्वर, जहाँ पर भी आपका प्लेटफॉर्म है आपका सर्वर्स में सबमिट करते हो। तो मैंने क्या कहा कि एल्गोरिदम्स ऑब्वियसली आपका जो भी कोड है ऑब्वियसली उस पर आपका वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है, समझो ये वैल्यूज है, ये इंजेक्ट करती है। तो अब होता क्या है ना कि कभी भी ऐसा कोई भी कोड ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार वैल्यू दो और वो उस वैल्यू पे सही आ गया तो बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है। मल्टीपल, एंड लिटरली मैं आपको भी दिखाऊंगा, यू वोंट बिलीव कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मल्टीपल वैल्यूज में होता है, ठीक है, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपको वैल्यूज देनी पड़ती है और हर एक पॉसिबल इनपुट पे चेक करना पड़ता है कि आपका आउटपुट आ रहा है कि नहीं सही एक्सपेक्टेड। तो हर अगर मल्टीपल इनपुट आपका वही हर अगर मल्टीपल इनपुट पे आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया, दैट मीन्स आपका वो कोड सही रहता है। तो ये जो होता है ना कि मल्टीपल इनपुट्स दे रहे, मल्टीपल इनपुट्स इंजेक्ट कर रहा होता है सर्वर और या फिर जो एल्गोरिदम है, जो भी चेकर है आपके कोड पर, ये मल्टीपल इनपुट इंजेक्ट कर पाए बार बार, वैसा ही हमको कोड कुछ लिखना पड़ता है। और इसी बेसिकली मल्टीपल इनपुट्स जो हम देते हैं, और मतलब इस पर्टिकुलर मतलब ऐसे कुछ आप सिंपल मतलब समझिए कि लाइक सिंपल मतलब ये जो एक पर्टिकुलर टेस्ट केस है, इसमें क्या हो रही होगी कि ये इनपुट होगा और ये आउटपुट आएगा। ऐसे ही सेम दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ एंड ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ यार, ठीक है। सो ये जो मैं पूरा बनाया हूं ना सेट, दिस इज बेसिकली कॉल्ड, ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है। मतलब यहाँ पर आप देखो तो पूरा ये 9 टेस्ट केसेस हैं, और हर एक टेस्ट केस में आप देख सकते हो, हर एक टेस्ट केस में एक वैल्यू, एक इनपुट, मतलब उस इनपुट वैल्यू पर, ऑब्वियसली उस इनपुट वैल्यू पर एक आउटपुट मिलता है। सो ये हर एक टेस्ट केस में अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया, देन आपका कोड डिटरमाइन होता है कि भाई सही है आपका कोड, एंड देन फाइनली आपका जो कोड है वो यहाँ पर एक्सेप्टेड करके दिखा रहा होता है। सो दिस इज द ओवरऑल लॉजिक। आपका ये बेसिकली मतलब रहता है कि टेस्ट केस का, बहुत लोग समझते नहीं है टेस्ट केस का बहुत इशू हो जाता है, नहीं, टेस्ट केस का इतना सिंपल सा मतलब है। अब इसका मतलब समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पर अब हमारा हम जो कोड है हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि एक बार कोड, अब देखो बहुत समझना ध्यान से कि एक बार चलो ठीक है कोड स्टार्ट कर दिया, कोड तो रन हो गया, प्रोग्राम चालू हो गया, फाइल रन हो गया, लेकिन वो इतने नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हो यहाँ पर कि फर्स्ट लाइन यहाँ पर लिखा था कि अ सिंगल ये टी द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट होते रहे, ये प्रोग्राम पूरा वापस रीरन होते रहे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम एल्गोरिदम के लिए, क्योंकि हम जब सबमिट करेंगे हमारा कोड तो हम कुछ इस प्रकार बना ही रहे हमारा कोड कि हम एल्गोरिदम के लिए बना पाए कि एक बार तो तू भाई एक वैल्यू पर, एक इनपुट वैल्यू पर पूरा कोड रन कर लो, चेक कर लो, ठीक है, पर उसको अगर चाहता है कि वापस एक फ्रेश वैल्यू इंजेक्ट करना है, ठीक है, तो वापस पूरा प्रोग्राम रीरन हो, ठीक है, एंड देन वापस वो एक न्यू एंड फ्रेश वैल्यू इनपुट करे और उसका आउटपुट चेक कर सके। सो इसके लिए हमको कुछ इस प्रकार ही कोड लिखना पड़ेगा। सो लेट मी शो यू कि सबसे पहले तो जैसे कह रहा है कि मतलब देखो सिंपल आपको इनपुट ही लेना है। जैसे कि यहाँ पर टी इनपुट आप ही जैसे बताओगे, कभी आप इनपुट लेते हो यहाँ पर तो कैसे करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो या ऑब्वियसली आप इंटीजर डेटा टाइप यूज करके सिंपल टी, एक टेस्ट केस एक टी नाम का वेरिएबल बना सकते हो। देन ऑब्वियसली यूजिंग सीन आप इनपुट ले लो। देखो दैट्स इट, इतना ही सिंपल है, इनपुट लेना तो इतना ही सिंपल है। तो आपको अपना प्रोग्राम इस प्रकार लिखना है कि मतलब इतने नंबर ऑफ टाइम्स, इतने, जैसे कि यहाँ पर याद है ना, जो फर्स्ट लाइन में 7 इनपुट दे रहे थे, ठीक है, आप चाहते हो 7 बार, हाँ यही 7 का यहाँ पर यही मतलब है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी हवर करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 बार ही एक 7 मल्टीपल एंड डिफरेंट वैल्यूज पर चेक हुआ है, इनपुट हुआ है, देन आउटपुट है उस हिसाब से। सो आप चाहते हो कि ऐसे मल्टीपल वैल्यूज एंटर हो और रीरन होते रहे, तो होता क्या ना, हमको हमारा कोड, तो आप देख सकते हो जहाँ पर रिपीटेशन और ऐसे जब ये रीरन वाली बात आई, कहीं ना कहीं लूप लगने वाला है। एंड अब मैं वही आपको मैंने बताया था ना कि मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा एंड आपको वो बेस्ट मेथड एंड बेस्ट करेक्ट अप्रोच बताऊंगा कि कैसे आप सीपी आप में प्रॉपर आप कोड अपना लिखोगे। एंड या देखो ये तो मैं, आप सोच रहे होंगे मैं C++ के लिए बता रहा हूँ, नहीं, ये तो C++ बता रहा हूँ, तो C++ के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से ऐसा रहेगा। आप अगर पाइथन में हो, आप अगर सी में हो, आप किसी भी लैंग्वेज में हो, आपको ऑब्वियसली मैंने कहा कि यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद लैंग्वेज। अगर आप उस लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो तो आपको लाइक फॉर श्योर आप ये चीज़ को आप अपने लैंग्वेज में भी लिख पा रहे होंगे, ठीक है। लाइक सिंपल आप अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए होंगे, ठीक है, उसमें आप फिर उसको इनपुट ले लिए होगे, एंड या देन उसके बाद क्या, अब आपको एक वाइल लूप रन करना पड़ता है। मैं C++ में मैं ऐसे कुछ रन कर रहा हूँ कि वाइल लूप में यहाँ बीच में कंडीशन दे रहा हूँ टी माइनस माइनस, बेसिकली मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। एंड अब रियली इंपॉर्टेंट, मेरा जो यहाँ मेन जो मेरा कोड है, जो मेरा मेन लॉजिक एंड मेन जितना भी मेरा कोड है, इस वाइल लूप के अंदर चलेगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, आप बोले ये क्यों इतनी अनईजी चीज़ हो रही है, मैं लिटरली बता रहा हूँ कोई ये अनईजी चीज़ नहीं है यार। मतलब बोलोगे काफ़ी टफ लग रहा है, बिल्कुल टफ नहीं है, ये इनिशियल हो सकता है आपको लग रहा हो ऐसा है, लेकिन देखना सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन से आप देखोगे कि यार तो काफ़ी ईजी है, आप जल्दी जल्दी इतना लिख दोगे एंड आप ना मेन जो कोड है आप इसके अंदर ही लिख रहे होंगे। हो क्या रहा होता है, आप कोई भी प्रॉब्लम देखो, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये टेस्ट केसेस वाला दिख रहा ही होगा, क्योंकि आप ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि सीपी में और वो कोड फोर्सेस में। एंड सुनो, ऐसा नहीं कि कोड फोर्सेस के लिए ही है, काफ़ी आपको होता है, देखो आप काफ़ी अदर प्लेटफॉर्म्स काफ़ी इस चीज़ को ईजी कर देते हैं, लेकिन ठीक है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ भाई रियल प्रोग्रामर, आपको अपना रियली में आपको अपना स्किल्स एनहांस करना है, तो यार ये सब छोटी मोटी चीज़ें तो आपको डील करनी ही पड़ेगी, राइट। सो द थिंग इज कि ऐसा ही हुआ कि आपने अपना, अब बोलोगे कि ऐसा C++ में पहले तो बता दूँ, ये जो मैं टी माइनस माइनस अंदर क्यों लिखा, देखो आप रियली आप ऐसा भी कर सकते हो, लाइक टी लेस दैन या फिर ग्रेटर दैन 0 आप कर सकते हो, ठीक है, टी ग्रेटर दैन 0 कर सकते हो यार, अंदर आके ऑब्वियसली इनसाइड द लूप एट द वेरी लास्ट पॉइंट इन द लूप आप टी माइनस माइनस ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि आप एक कंडीशन देते हो, देन आप डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट करते हो। सो अगर एक ईजियर अप्रोच है कि आप यहाँ पर ही
t माइनस माइनस कर दो, तो अब होगा क्या, मैं तुरंत एक बार रन करके दिखाऊंगा इसको। यहाँ पर मैं सिंपल एक हेलो वर्ल्ड ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल हेलो वर्ल्ड लिख के यहाँ पर मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा होता है चीज़ें। जैसे आप एंटर करोगे, अब देखो आप यहाँ पर देख पा रहोगे, देखो स्टक हो गया, मैंने रन किया तो स्टक हो गया फाइल, मतलब इसके आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है। वो इसलिए ऑब्वियसली क्योंकि एक तो मैंने यहाँ पर सी आउट कुछ लिखा नहीं था, कुछ डिस्प्ले मैसेज लिखा नहीं था, डायरेक्टली मैंने इनपुट करवा लिया। हाँ, ऐसे ही आपको करना पड़ता है, मेक श्योर कुछ आप सी आउट वगैरह यहाँ पर मत लिख देना, ठीक है। सो अब क्या हो रहा होता है ना कि वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है एक वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप इस पूरे प्रोग्राम को रीरन करना चाहते हो विद डिफरेंट वैल्यूज विद डिफरेंट इनपुट्स, दैट्स इट। मे बी चलो इस केस में हम 4 देते हैं, मैं एंटर करूंगा, आप देखना क्या हुआ। देखिए यहाँ पर 4 टाइम्स हेलो वर्ल्ड रन हुआ। बोलो कि 4 टाइम्स रन कैसे हुआ? भाई सिंपल लूप का लॉजिक था यार। कि हुआ क्या, एक बार सबसे पहले जैसे इमेजिन करो टी की वैल्यू थी 4 थी, ठीक है, आया सी आउट जो भी होना था, जो भी प्रिंट होना था हो गया, देन वापस ऊपर गया। अब देखो माइनस माइनस लगा के रखा है हमने डिक्रीमेंट लगा के रखा है, तो 4 माइनस होगा 3, मतलब 4 माइनस 1 होगा, दैट इज 3। सो अब 3 हो गया, अब 2 हो गया, 1 हो गया, ये चलेगा 0 तक। जैसे ही वैल्यू 0 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा एंड द लूप विल एंड, ठीक है। सो दिस इज हाउ आपने देखा कि अब वहां पर अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं 7 एंटर करता तो 7 टाइम्स रन होता। आप देख सकते हो यहाँ पर 7 टाइम्स रन हुआ। सो दिस इज द थिंग कि आपको ऐसे अपना कोड इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि यार आपको नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पहले से ही मेंशन करने पहले से आपको इस प्रकार कोड आपको लिखना पड़ेगा कि आप अभी क्या ऐसे इमेजिन करो कि देखो अभी जैसे मतलब अभी तो जैसे चेकर में हूँ, जैसे इमेजिन करो मैं चेकर हूँ, मैं ही ऐसे चेकिंग करने आया, तो ऑब्वियसली ठीक है मैंने प्रोग्राम देखा, मैंने रन किया। अब मैं चाहता हूँ कि ओके इसमें मैं तीन बार मैं चेकिंग करना चाहता हूँ कि 3 इनपुट्स पे मुझे चेक करना है क्या वैल्यूज आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं। मैं स्टार्टिंग में आके एक नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दे दूंगा कि अच्छा इसने अगर बना के रखा है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई मतलब से फॉर एग्जाम्पल ना अभी मुझे कोड नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई मुझे यहाँ पर पहले से ही मैं स्टेट करके रखा था प्रॉब्लम में कि भाई आप अपना कोड इस प्रकार लिखोगे कि पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ही इनपुट होंगे। तो मैं उस हिसाब से करूंगा कि अच्छा मुझे तो 3 बार कुछ चेक करना है, मैं 3 लिख दूंगा, एंटर करूंगा, हाँ कोड रन हो रहा है, मैं 3 बार डिफरेंट वैल्यूज देख के चेक कर पाऊंगा। सो दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, अब बस सिंपल आपको ये पहला लाइन तो चलो आपने इनपुट कर दिया। अब देखो अब ऑनेस्टली बताओ, अब यहाँ से चीजें इजी हो जाएगी यार, बहुत मैं लिटरली बता रहा हूँ अब आपको, क्योंकि मेन कोड और मेन लॉजिकल पार्ट पे आना है। अब यहाँ बोल रहा है द ओनली लाइन, अब यहाँ पर देखो पहला आपने इनपुट ले लिया, दूसरा मतलब वो ये कि इनपुट आपको इनपुट आउटपुट क्यों पढ़ना पड़ रहा है। इनपुट में देखा आपने इनपुट से आपको समझ में आया कि अच्छा पहला तो इनपुट हो गया ये, फिर आपको सारे कंडीशंस फुलफिल करने पहले ये कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम को कि अच्छा पहले आपको हर एक लाइन में कैसे कैसे क्या क्या इनपुट आपको देने पड़ेंगे, आपको हर एक उस प्रकार का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, फिर आपको फाइनल अपना लॉजिक लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, दैट्स वाई। सो ठीक है, पहले तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस आ गए, ठीक है। देन उसके बाद द ओनली लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स 4 इंटीजर्स ए बी सी डी, ऑब्वियसली द लेंथ ऑफ द स्टिक्स। तो एक चीज देखा आपने, अब आपको आई होप सो, क्योंकि मैं इसलिए इस लाइन पे नहीं बढ़ रहा था, मुझे देखो टेस्ट केसेस समझाने का मतलब इसलिए था, ये फर्स्ट टाइम था, इसके बाद उतना ऑब्वियसली डिटेल में नहीं बताऊंगा टेस्ट केस, क्योंकि टेस्ट केसेस यही था, मतलब इसका एक बार बताना। देखा अब देखा यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है कि द ओनली लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस। अब समझे ईच टेस्ट केस क्या होता है कि टेस्ट, अब आई होप सो समझ में आ गया होगा कि भाई वो ईच जो बोल रहा है, ईच मतलब यही बोल रहा है कि ईच मतलब इसलिए बोलना वो चाह रहा है क्योंकि मैंने कहा ना कि पूरा प्रोग्राम रीरन होगा, तो हर एक रन पे फर्स्ट टाइम रन हुआ, फर्स्ट टेस्ट केस पे रन हुआ, तो उस टेस्ट केस पे आपको ये इनपुट लेना है, ये इनपुट लेना है, ठीक है। देन उसके बाद वापस जब रन होगा फिर आपको ये इनपुट लेना, तो बस वही है कि हर एक टेस्ट केस पे जो पहला मतलब कि देखो हर एक टेस्ट केस पे हम देखो अब देखो हम 7 टेस्ट केस हम अगर लेंगे तो अब हम हर एक टेस्ट केस पे सेम वैल्यू तो नहीं रखेंगे, हम डिफरेंट वैल्यूज पर ही चेक कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड कि डिफरेंट वैल्यूज एक्सेप्ट हो रही होंगी। उस हिसाब से हमें वही कोड हमारा हमने ऐसे ही बनाया कि लूप रन होगा तो एक फ्रेश वैल्यू एक्सेप्ट होगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हमें उस मतलब हर एक टेस्ट केस जब भी रन होगा तो सबसे पहले ये 4 आपका वैल्यूज आप और 4 इंटीजर्स आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, दैट इज ए बी सी डी। तो आप सिंपल आता है, देखो आप ऑब्वियसली कुछ भी आप यहाँ पर नाम आप लिख सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है, ए बी देन सी एंड डी, ठीक है, आपने ऑब्वियसली डिक्लेयर कर लिया। एंड आई होप सो यू नो कि भाई इसमें सी प्लस प्लस में इनपुट करने के लिए आपको स्ट्रेट ऐसे इनपुट करने के लिए ऐसे आप स्ट्रेट लिखते जाओ, ऐसे ये फॉरवर्ड एरो यूज करके ए बी सी एंड डी, ठीक है, आई होप सो, एंड विद अ सेमीकोलन, एंड या दैट्स इट, आपने चारों वैल्यूज को इनपुट भी कर लिया। अब जब आपके पास वैल्यूज हैं, आपके पास सारे चारों वैल्यूज हैं, अब आप डायरेक्ट अपना लॉजिक लगाओ ना। आपको जैसे पता होगा हमारे पास 4 लेंथ्स हैं, सो एज आई सेड अ स्क्वायर टू बी अ स्क्वायर क्या होना चाहिए लॉजिक, सारे वैल्यूज सारे जो स्टिक्स है सारे लेंथ है इक्वल होने चाहिए।
और कहीं ना कहीं सारे चेक करना है, तो ये चेकिंग पे कहीं ना कहीं कंडीशन लगेगा। ऑब्वियसली हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे सबसे पहले, तो ठीक है हम ऐसे मतलब ऑब्वियसली अगर रैंडम में लिख दे ठीक है ए सही और ये पूरा डी के प्रॉपर, ये सारे मतलब जब भी ये सारे वैल्यूज अगर इक्वल मिल गए तो सिंपल उस पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पर अब देखो अब आपको ऑब्वियसली इसके बाद का लाइन आपको आउटपुट वाला सेक्शन प्रिंट आपको पढ़ना है। वैसे तो आपने यहाँ पर समझ लिया था करना क्या है, लेकिन वही ना एग्जैक्टली आपको प्रिंट भी क्या आपको प्रिंट भी क्या करना है वो भी आपको देखना है कि फॉर ईच टेस्ट केस, मतलब हर एक वो टेस्ट केस के लिए आपको प्रिंट करना है यस अगर पॉसिबल हुआ। जैसे यहाँ पर क्या था, डिटरमाइन करो कि पॉसिबल है कि नहीं वो चारों स्टिक्स को यूज करके स्क्वायर बनाना। तो अगर पॉसिबल हुआ चारों स्टिक्स को यूज करके स्क्वायर बनाना देन प्रिंट यस, अगर नहीं तो प्रिंट नो, एंड एज सिंपल एज दैट। बाकी ये सब तो सिंपल है, बताता है कि आप कोई भी केस पे लिख सकते हो, आप चाहे यस ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, डजंट मैटर। तो ये था ठीक है, आपने देखा आपने इनपुट भी पढ़ लिया आउटपुट भी पढ़ लिया। और देखा मैं क्या ऐसे किया क्या कि मैं पूरा पढ़ने के बाद 2 घंटे बाद फिर आके मैं कोड कर रहा हूँ, नहीं, पढ़ते पढ़ते साथ साथ आपको कोड भी करना स्टार्ट कर देना है। दिस इज द थिंग। सो अब आपने देखा ठीक है, आपने अगर ए बी सी डी सब इक्वल हो गया देन यू कैन लाइक हैप्पीली प्रिंट यस एंड सिंपल। आप ऐसे आई होप एंड रियली होप एंड बिलीव आपको पता होगा। आप इसके जगह आप यहाँ पर एंडल भी लिख सकते हो, मैं ऐसा ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लाइक सिंपल यूज कर रहा हूँ, आई होप सो ठीक है, आप समझ सकते हो। देन अब एल्स, आप सिंपल एल्स का कोड दे दो, एल्स का आप ब्लॉक दे दो, एल्स के ब्लॉक में नो कर देना एंड द प्रोग्राम इज डन। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं दिस इज लिटिल बिट इनकम्प्लीट, क्योंकि लिटिल बिट इनकरेक्ट, इसमें प्रोग्राम एकदम ही सही आंसर नहीं देगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अगर आप C++ जान रहे हो, C++ में ये लिखना एकदम थोड़ा इनकरेक्ट है, ऐसे वे में नहीं लिखना है, हमें थोड़ा इंडिविजुअल चेक करना है, मतलब 2 वैल्यूज पे चेक करना है एंड ऑपरेटर को यूज करके हमें चेक करना है मल्टीपल कंडीशंस। एक्चुअली करना क्या है हमें कि हमें ऐसे चेक करना है कि अगर ए की वैल्यू बी से इक्वल है, क्योंकि अब देखो ये ऐसा नहीं कि मैं बना रहा हूँ, ऐसा प्रीवियस वाले काइंड में आप ऐसे करके इतना जो था इसमें अगर आप चेक कर दोगे तो आपका देखना आंसर गलत आएगा। आपको ऐसे कुछ लिखना है, पहले आपको ए और बी चेक करना है। देखो ऐसे इमेजिन करो ए और बी चेक किए, ठीक है, फिर देखो मैं ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर प्रॉपर पैरेंथेसिस प्रॉपर ब्रैकेट्स का मतलब इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले ए और बी चेक कर लिए, फिर बी और सी चेक करो, देन आप चेक करो सी एंड डी, ठीक है। अब ठीक है, अब आप बोलोगे अरे सी एंड डी, अब डी एंड ए भी चेक करते हैं। अब देखो जस्ट चिल, क्योंकि देखो लाइक मैथमेटिकली ये आपको पता ही है एक चीज़ कि यार जब ए बी के इक्वल है, सी देन बी सी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, देन ऑटोमेटिकली डी इज इक्वल टू ए, आपको पता है, दिस इज नॉर्मल मैथमेटिक्स, ठीक है। लेकिन आपको पता है अभी इसमें आपको सिंटेक्स आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एम्परसेंड यूज करना पड़ेगा टू ऑब्वियसली यूज द एंड ऑपरेटर, एंड दैट्स इट यार। आपका जो कोड है लिटरली बताऊं इतना ही आपका कोड आपका कंप्लीट है, ठीक है। बस आपको इतना ही कोड आपका लिखना था एंड जस्ट नाउ लेट्स रन द कोड। अब यहाँ पर देखो चीज़ होता है, मैं आपको यहाँ पर ये जो टेस्ट केस था ये सब जो चीज़ था, इस सब का एक्चुअली जो मेन पावर रहता है मैं आपको बता रहा हूँ। अब वही है कि आपको जैसे अब आपकी मर्जी एक बार आप आओ, आप वैसे तो 7 दो, यहाँ पर आप खुद भी मैनुअली आके कर सकते हो, यहाँ पर मैनुअली आप 7 आओ, लिखो 1 2 3 4 डालो, 1 2 स्पेस करो। अब देखो एंटर करना, देखिए नो आया, तो समझे ये हुआ कि एक बार पहला टाइम मतलब पहला वाला टेस्ट केस हुआ, फर्स्ट वैल्यू पे आपका फर्स्ट इनपुट पे 1 2 3 4 पे पूरा प्रोग्राम हुआ, प्रोसेस हुआ, वो आपका आउटपुट दे दिया, एंड नेक्स्ट देखो नेक्स्ट लाइन पे ये स्टक हो गया एंड इट इज वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट वैल्यू टू एंटर, नेक्स्ट इनपुट टू एंटर। देखो कितना अमेजिंग है। अब आप नेक्स्ट में क्या दोगे, नेक्स्ट आप ऐसे 1 1 1 1 दोगे से फॉर एग्जांपल, तो बस अब वो इस पर्टिकुलर टेस्ट केस पे इस पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक करेगा एंड आपका बताएगा अच्छा हाँ यस, क्योंकि देखो ऑब्वियसली 1 2 3 4 में डिफरेंट वैल्यूज थे तो नो बता रहा है, स्टिक स्क्वायर बनाना पॉसिबल नहीं है, 1 1 1 1 पे सेम वैल्यू है, हाँ स्क्वायर बनाना पॉसिबल है। सो दिस द थिंग देखा। तो लेकिन वही है, अब देखो अब आप अगर आप बोलोगे यार ये मैं ऐसे मैनुअली एंटर करते रहो क्या, तो हाँ ऐसे वही है कि ये ऐसा टाइप का कोड लिखने का, ये सीपी में ऐसा कोड लिखने का फायदा ऐसा ही होता है कि क्या करो आप पूरा लो, ठीक है, सिलेक्ट करो पूरा। ऑब्वियसली जस्ट आप कोड फोर्सेस के यहाँ इंटरफेस में आ सकते हो, यू कैन सी हियर अ सेक्शन कॉल्ड कस्टम इन्वोकेशन, या फिर आपको कस्टम टेस्ट ऐसे भी कुछ दिख रहा होगा, जस्ट ओपन दिस, ठीक है, ओपन करो ऐसा, ध्यान से आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर कि ऐसा सोर्स ऐसा कुछ पैनल हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट में आपको एक कोड एडिटर टाइप दिख रहा होगा, पेस्ट योर कोड है, ठीक है, एंड यहाँ मेक श्योर आप यहाँ पर सही लैंग्वेज सेलेक्ट करो। मैं आपको बता दूं बाय द वे, जो लोग सी यूज कर रहे हैं डू सिलेक्ट दिस GNU GCC फर्स्ट वाला, जो C++ में कर रहे हैं वो 13.2 या 14.2 दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बोथ वर्क्स फाइन। एंड ऑब्वियसली यार जो पाइथन कर रहे हैं वो ये पाइथन, ये नीचे आके पाइथन का 3.13 यूज करना एंड या सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब आप अपने लैंग्वेजेस के लिए आप देख ही सकते हो, चूज करो, एंटर करो। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको 2 सेक्शंस दिख रहे होंगे, इनपुट एंड आउटपुट। ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन में आना है,
आपको यहाँ पर इस इनपुट सेक्शन का यहाँ पर आपको कॉपी दिख रहा होगा, ये कॉपी करना है। मतलब होगा क्या, ये पूरा जो इनपुट ब्लॉक है, पूरा इनपुट चंक है, ये पूरा कॉपी हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर पेस्ट करोगे आके एंड आप सिंपली यहाँ पर रन बटन क्लिक करोगे तो आपका रन होना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हो रन हो रहा है। तो हुआ क्या पता है अब क्या हुआ कि मतलब जितना था, मतलब जितने भी ये सब पूरे टेस्ट केस थे, सारे टेस्ट केसेस पे वो चेक हुआ वैल्यू और एक बार में आउटपुट दे दिया। अब आप पूरे आउटपुट को लेके चेक कर सकते हो कि हाँ आउटपुट क्या आ रहा है। एंड ऑब्वियसली आप नीचे आओगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ये यहाँ पर टाइम भी बताता है, MS इज मिली सेकेंड एंड स्पेस बताता है। बाकी ठीक, अभी वो जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर आप क्रॉस चेक कर सकते हो, देख सकते हो आपका कोड और इसमें आंसर आ रहा है कि नहीं सही। तो नो यस यस, नो नो यस नो, नो यस यस, नो नो यस नो। तो आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट था वो एक्सपेक्टेड आउटपुट का एग्जैक्टली इक्वल आया, एग्जैक्टली सेम आया। दैट मीन्स वी कैन, हम खुद से हम समझ सकते हैं अच्छा हाँ हमारा कोड तो अब सही होगा इसका मतलब। सो आइए अब हमारे इस कोड को अब ऑब्वियसली इट्स टाइम टू भाई सबमिट दिस कोड ऑनेस्टली। ठीक है, हमारे कोड को हमें सबमिट करना पड़ेगा अभी। तो यार मेक श्योर यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आप आके ये सबमिट कोड वाले सेक्शन में क्लिक करना। कहीं आपको जब सबमिट करना हो तो ये सबमिट कोड में आना, जब ऑब्वियसली रन करके नॉर्मल चेक करना हो तो ये कस्टम इन्वोकेशन में आना। तो एक बार आप सबमिट कोड में आ गए, अगर होता है कभी कभी होता है कि प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता है, कभी नहीं है तो सिलेक्ट कर लेना, क्लिक करके प्रॉब्लम का नाम स्क्वायर लिख देना, डू सिलेक्ट योर लैंग्वेज एंड कंपाइलर, पेस्ट करो कोड को। ठीक है, देन जस्ट सिंपली क्लिक सबमिट एंड या वो लाइक इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा वो लोड होगा। ठीक है, जस्ट लोड होगा। एंड वैसे बाय द वे यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक्सेप्ट आ गया मेरा बिलो में, लेकिन हाँ कभी कभी ना थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है। तो आप क्या किया करो, कभी ऐसे कोड फोर्सेस में होता है लोड काफ़ी होता है, तो क्या करना, यहाँ पर आप ऑब्वियसली आपका यहाँ पर प्रोफाइल का सेक्शन दिख रहा होगा, वैसे तो आ गया था। आपको यहाँ पर अपने सबमिशन सेक्शन में भी आप जाके कि आपने रीसेंट अभी जितने भी सबमिशंस किए रहेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आप अभी तो क्लियरली आप देख सकते हो। आप वो प्रॉब्लम में भी जाओगे, आप या तो यहाँ से आप देख लो या तो वो प्रॉब्लम के नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको अपने सबमिशंस भी दिख रहे होंगे। तो आप अपने यहाँ पर या तो यहाँ पर आप अपने माई सबमिशंस यहाँ पर भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब पहले के मैं इग्नोर करो, मैं पहले कर रहा था। तो अभी जो रीसेंट जो अभी मैंने सबमिशन किया, आप यहाँ पर इस वाले बेसिकली सेक्शन में क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपने जो बेसिकली अपना कोड सबमिट किया था वो ये था आपका कोड। एंड देखो मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा था। अब देखिए जो टेस्ट केस में अगर स्क्रॉल करूँगा तो देखो कितना ये सब, कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ है सब दिखा। तो यही होता है एक्चुअली कि आपका ये कोड पर ये सारे मल्टीपल टेस्ट केसेस रन होते हैं। मतलब पहला ये टेस्ट केस, मतलब पहला तो चलो पहला जो वहाँ लिखा था वो रन हो गया। ठीक है, अब ये मल्टीपल आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो आप कि 10,000 लिटरली मतलब 10,000 आपके कोड पे 10,000 मल्टीपल वैल्यूज़ आपको यहाँ पर इंजेक्ट किया गया। ठीक है, 10,000 मल्टीपल इनपुट्स पर आपका वैल्यू चेक किया गया। अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे आप देखोगे यहाँ पर डॉट कर दिया गया है ज़्यादा, क्योंकि 10,000 कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो डॉट कर दिया। एंड इस पर्टिकुलर इनपुट पे, इन पर्टिकुलर इनपुट्स पे आपके ये सब वैल्यूज ये यस नो नो पूरा आ रहा है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो दो चीज़ है। ठीक है, एक है आउटपुट, एक है आंसर। एक आउटपुट होता है कि जो आपका प्रोग्राम ने क्या कोड जनरेट, क्या आउटपुट कि आपके प्रोग्राम ने क्या आउटपुट जनरेट किया, वो ये मतलब होता है। एंड आंसर है कि एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको याद होगा, मैंने अभी जब एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने बताया था कि आपके प्रोग्राम ने जो आउटपुट जनरेट किया वो ये है, एंड वो अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट से इक्वल हो गया देन या यू आर गुड टू गो, योर कोड इज परफेक्ट। सो ये पूरा हुआ, सही हुआ, पूरा सब मल्टीपल ये चेक हुआ एंड माई कोड वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो यहाँ पर एक्सेप्टेड दिखा रहा है एंड या आई एम गुड टू गो फ्रॉम हियर। Alright, so if you have enjoyed this session and if you have really learned something from it, and if you really believe that I deserve to be subscribed, so please do that. And I hope you like this video too. And please, I would urge you to comment down like any sort of question, any sort of problem you're facing. If you want any specific topic related video in future, so do comment on that. If you have found any difficulties or if you have any sort of doubts or any queries or anything, just do mention that in the comment section. Alright then folks, I'll see you in the next video very soon. Till then, keep grinding, and this side Shubh Devs signing off.